You can directly. Uh, Regarding this rape and murder in Jind, Haryana state, we are really very unhappy with the inquiries doing the police and the administration of Haryana. And I think they are not interested at all in that case. That's why it is not the proper inquiry has not been done. The third autopsy done in AIIMS, and still we don't know what is the report says. And before that, in the two autopsies, the police and the medical officers, they are uh, they are they are in, hand to hand. They are in. They try to together. This is not a rape and murder. They try to prove that this is not a rape and murder. It's a suicide. But we have seen the first report, which came from Haryana, Jind itself, and the diagram shows that there are so many wounds on the body. Wounds means there is a cigarette burning is there, and there is a scratching all over on the body, and the lower part is really mutilated. So these are the first evidences of the rape, and nobody can deny that. Even the police did not themselves, and the medical officer did not deny that this is a rape. But in the second autopsy, they tried to turn into a suicide case, and that's why our organization and the people sitting there, the family members and the Dalit community people, they pressurize the government. They want the third postmortem, which will be fair and in their support. So that's why the body was bring to AIIMS. The so much pressure we developed through the NCW, through the SC Commission, through the individuals, and finally it happened. But the third report, we don't know what it says. But at least I can understand AIIMS will not give the fake report. It will definitely be in favor of the girl. What happened with her, the very horrifying incidents, and I think that is uh, no one will go if she wanted to suicide. She would have jumped into the gutter, or she would have hanged herself inside the house. Why she should go and the police found her in naked position. So this is a short rape and murder, and not gang. It's a gang rape. So we are really worried about the situation in Haryana, and before also 22 cases are still not the procedure is not speed up in the court. In many cases, the rape and murder happened, gang rape happened, but the police try to change the case in a kidnap case, or sometimes it's just the woman is the girl, even in one of the minor girls rape case, police try to say that she is habitual for sex. This is the state of this Haryana, and the police and the administration and the medical officer. Medical officer, the woman officer, medical officer write on the report, the girl, 11-year girl, is habitual to the sex. That means she was raped. This is the evidence she was raped, and she was gang raped, not once or twice, many times. So this is the evidence herself she is given, but the police turned the case into kidnap. So in that case also, last year it happened. We sat on dharna the whole day. We gherao the police station, we gherao the medical officers, and finally that it proves by the Supreme Court. We put the PI in the Supreme Court in this particular case. And now the four accused
4 accused, the rapists, have been arrested by the police, the same police, and that the case is under trial. So this is not happening first time. This is a record of Haryana since last so many years, and in not a single case the women or the Dalit girls or the Dalit women have been get the justice, because the police have been told by the government, not a single case should be recorded under rape or murder. This is the status of the government, Haryana government, and they are caste and gender biases so much, and the entire Haryana state doesn't give the dignity to the women in Haryana. They think that Dalit girls and Dalit women are just they can use any time. They can have they are in their hand, so they can use any time them and just throw away or murder them or brutalize them. So this is the very horrifying evidences and status of Dalit women in Haryana. Our Indian society is caste-based society, and when it is caste-based society, there is a caste division among all the people. And when it comes to the lower caste, all the Dalit women, or you can say all the Dalit women, I am not talking only Dalit women, it's a Adivasi women or the other backward women also. They also become a prey of rape every day, because they look down upon by the dominant caste, and they think that this is their property, they have their right on their body, and nobody can deny that. And it is written in the scripture, the religious scripture, and they follow till today. They are following the same tradition and same rituals, and say they believe in that, and because on that basis they have the upper hand, and nobody touched them, and the government never follow the act or the rules and the acts. They never apply the SC/ST Atrocity Protection Act. They never apply the Devdasi System Act. There is a prohibition. There is a prohibition on manual scavenging. But these all the traditions are going on till today. This is the 21st century, and the Dalit women's fate is like that. They never consider as a human being. They don't have dignity. They don't have any kind of सम्मान और dignity. तो ये सब उसमें हमारी पूरी सिस्टम में इम्बाइडेड है, इतना अंदर तक मानसिकता में, इतना हमारे भारतीय लोगों के मानसिकता में जाति से प्रथा और महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण इतना मैला है, इतना बुरा है कि उसे हटाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारी योजनाएं बनाकर उनको दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरा एक और कारण है कि दलित महिलाओं को ही केवल क्यों हमेशा रेप की विक्टिम वो क्यों बनती है, या आदिवासी महिला। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिंदी में बोले चलेगा, तो वो आर्थिक रूप से निर्भर है, आर्थिक रूप से डोमिनेंट कास्ट के ऊपर निर्भर है हमेशा। अपनी रोजी रोटी के लिए वो किसी और के ऊपर निर्भर है। उसके पास अपना कोई कुछ नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है, उसके पास अपना कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो आर्थिक रूप से वो हमेशा दूसरों पर निर्भर है। तो उसकी इस निर्भरता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ उठाया जाता है। जो डोमिनेंट कास्ट है, जो इस देश के ज़मींदार है, जो इस देश के सो कॉल्ड हाई कास्ट है, जो अपने आप को वरिष्ठ जाति मानते हैं, उन्हें लगता है कि इनको तो हम कभी भी मसल सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक क्रीचर्स, और
साथ नहीं है, ना तो पुलिस महकमा उनके साथ है, ना तो जुडिशरी उनके साथ है, ना तो प्रशासन उनके साथ है। प्रशासन अगर नहीं साथ रहेगा, मतलब अगर राज्य साथ में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस या न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और यही हो रहा है लगातार। अगर पूरे देश में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 99% जो रेप केसेस है जो और मर्डर और रेप और मर्डर, वो सिर्फ और सिर्फ दलित और आदिवासी महिलाओं पर ही क्यों हो रहे हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। वो बताते हैं, उनका डेटा है कि 99% दलित विमेन्स आर द विक्टिम ऑफ रेप एंड मर्डर। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि उसकी तरफ देखने का जो नज़रिया है, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मनुस्मृति ने दिया हुआ है कि दलित स्त्री है और दलित है, तो उसका कई बहुआयामी उसका शोषण हो रहा है, जिसे हम अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि वो कई तरह से उसका शोषण हो रहा है, लेकिन कभी कोई किसी को उसके तरफ देखने का नज़रिया नहीं बन रहा है, या इसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन या 10 ऑर्गेनाइजेशन अगर साथ में आए तब भी कितना हो सकता है। अगर पूरा राज्य आपके विरोध में है, पूरी शासन व्यवस्था आपके विरोध में है, आपके सपोर्ट में नहीं आ रहे, चाहे संवैधानिक कितने ही कानून हैं हमारे साथ में सपोर्ट में, लेकिन उसे लागू करने वाले वही लोग हैं जिनकी मानसिकता में जाति और स्त्री विरोध बहुत कूट कर भरा है। तो उनके साथ लड़ाई हमारी बहुत लंबी है, और ये लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे, और तभी हमें जो भी न्याय की जो गुहार है हमारी, या न्याय मिलने की जो आशा है, तभी पूरी हो सकती। मेरा मानना है कि जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार है। एक तो सामाजिक रूप से वो सबसे निचली पायदान पर है, बाद में वो पहले दलित है, फिर स्त्री है, और उसके बाद वो गरीब है। गरीब इसलिए है कि उसके पास ज़मीन नहीं है, या उत्पादन का कोई साधन नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है उसके पास। तो पूरी तरह से वो इन्हीं लोगों पर निर्भर है, जो आप जाट कहें या दूसरे खत्री कहें या ब्राह्मण कहें, जो भी जाति है, जिनके पास ज़मीनें हैं और पूरा संसाधन, देश के संसाधन उनके हाथों में। और राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की कोई भागीदारी नहीं है, और महिलाओं की तो कहीं पर भी नहीं है। दलित की ही नहीं है तो वो हम उसमें महिलाओं की कहाँ रहेगी। तो हरियाणा ऐसा क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर बहुत पानी है, और वहाँ की ज़मीन बहुत 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 फर्टाइल है, और वहाँ पर जिनके पास ज़मीनें हैं वो बहुत अमीर हो चुके हैं, उनके पास अकूत संपत्ति आ गई, और जिसके पास अचानक किसी के पास अगर बहुत संपत्ति आ जाए, बहुत धन संपदा आ जाए, तो उसका नज़रिया बदल जाता है। वो अपने आप को फ्यूडल लॉर्ड समझने लगता है, और फ्यूडल लॉर्ड के दिमाग में अगर जाति व्यवस्था अगर उसी पुरातन रूप में बैठी हुई है, और वहाँ स्त्री के प्रति अगर उसका तिरस्कार है, तिरस्कार का भाव है, घृणा का भाव, क्योंकि स्त्री को बराबरी का नहीं माना जा रहा है। और ख़ास करके हरियाणा में ये पाया गया है कि स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण बहुत हीन है। स्त्री को कभी बराबरी से नहीं माना जाता है। वहाँ की अच्छे घर की स्त्रियाँ, अच्छे घर की मतलब काफ़ी अच्छे मालदार लोगों की बहुएं, या उनकी घर की जितनी भी स्त्रियाँ हैं, आज भी वो काम करते हैं जो कि बहुत ही उनके लिए शोभनीय भी है, जैसे कि गोबर थापना या घास काटने जाना। उनके घर में कारें हैं, जिनके घर में कार है या बहुत बड़े बड़े बंगले हैं और बहुत संपदा है, उनकी बहुएं गोबर फेंकने जाती हैं या गोबर थापने जाती हैं, जो उपले बनाए जाते हैं, या खेतों में काम नहीं करेगी, घर में ही रहेगी, लेकिन ये काम जिसे निकृष्ट काम माना जाता है वो घर की बहुओं से करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे धन
संपत्ति कितनी ही आर्थिक रूप से कितनी सबल हो जाए, लेकिन स्त्री के प्रति देखने का दृष्टिकोण उनका बहुत निम्न है, उसको बराबरी का अधिकार नहीं है। और फिर जब दलित या आदिवासी की बात आती है तो ये और भी ज़्यादा गिर जाता है कि उन्हें लगता है कि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ना इनके पास ज़मीन है, ना इनके पास कोई आर्थिक आधार है, ना इनके पास कोई इज्जत है, सम्मान है। सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। जो पहले बात मैंने कही है कि ये धर्मशास्त्रों ने जो सिखाया है, जो उसी का अभी भी प्रभाव बना हुआ है। एक तरफ हमारा संविधान है, संविधान के पूरे संवैधानिक कानून हैं, और एक तरफ धर्मशास्त्र का कानून है जो आज भी उसी रूप में लगाया जाता है। खाप पंचायतें क्या कर रही हैं? किसी भी लड़की ने अगर अपने पसंद से किसी के दूसरे लड़के के दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी की तो उसे मार दिया जाता है। ये खाप पंचायतों का स्वयं निर्णय होता है। तो ये हम 21वीं सदी में भी जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा अभी 12वीं और 13वीं सदी में जी रहा है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ा है। खास करके स्त्री के संबंध, स्त्री के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो इतना निम्न है, इतना घिनौना है, और दलित स्त्री को तो वो तिरस्कृत ही मानता है और अपनी एक उपयोग की स्त्री वस्तु मानता है, वस्तु के रूप में उसे इस्तेमाल करना चाहता है। और अब जो घटनाएं हुई हैं, स्कूल जाते हुए बच्चियों को उठाया जा रहा है, स्कूल से वापस आ रही बच्चियों को, या फिर गांव में कहीं पर काम कर रही लड़कियों को खेतों में उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, और फिर दूसरे दिन उसकी लाश ही मिलती है। तो बहुत सारी माता पिताओं ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, स्कूल से घर बिठा दिया है, और इससे उनका शिक्षा का स्तर फिर नीचे आएगा। वैसे ही शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आया, बहुत कम है। शिक्षा का दर शायद 22 से 23 है दलित स्त्रियों में, वो घटकर अब 10 या 11 हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं लगता है कि यहाँ सुरक्षित है। और जो वहाँ के पुरुषों का अगर देखा जाए कि पूरी पुरुष व्यवस्था जो है, पुरुष सत्ता जो है, जिसे पेट्रियार्की हम कहते हैं, पेट्रियार्कल जो सेटअप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो अपने इस अधिकार को थोड़ा सा भी कम होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए खाप पंचायतों ने कितने एक साल में उन्होंने 22 जोड़ों को मार दिया, 22 युवा जोड़ों को मार दिया, ख़त्म कर दिया, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है स्टेट में। सिर्फ एक केस में कुछ कार्रवाई हुई है जिसमें 3 या 4 एक्यूज को सजा हुई है, लेकिन हम ज़्यादातर केसेस में तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की सरकार इसे अपराध नहीं मानती है। वो मानती है कि ये हमारे खाप पंचायतों का निर्णय है, पुरुषों का निर्णय है, तो वो सही ही है, इसलिए उनको टच नहीं करती। और यही बात दलित महिलाओं के और दलित बच्चों के साथ हो रहा है, और उनके लिए तो सम्मान भी नहीं है, ना वो इतने गरीब हैं कि वो सबसे निचली पायदान पर खड़े। हमारे कास्ट और जेंडर का इशू है, और कास्ट और जेंडर जब ये इशू बन जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा में दलितों की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही उसे कहना चाहिए कि वहाँ उनके विकास का दर बहुत ही नीचा है, और जो स्टेट का उनकी तरफ जो रवैया है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बराबरी का दर्जा नहीं है। और जब दलित बच्चों की या महिलाओं की बात आती है तो वही रवैया उनके साथ और भी घिनौना होता है। तो ये कहना कि केवल ये स्त्री की बात है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस गांव में और भी लड़कियां हैं, और भी लड़कियां स्कूल जा रही होगी, या और भी लड़कियां बाहर किसी एग्ज़ाम देने जा रही हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई लड़की बाहर ही ना निकलती, या हर लड़की के साथ ये होता, लेकिन ऐसा नहीं। छेड़खानी भी होती है तो दलित लड़की के साथ ही होती है, क्योंकि ये आंकड़ा बताता है कि पिछले 1 साल में 2 महीने में केवल सितंबर से नवंबर तक हमें 26 केस मिले हैं जो दलित लड़कियों पर गैंग रेप और रेप के केसेस थे। उसी समय 1 या 2 केसेस हुए हैं
जो सामान्य महिला पर भी हुए। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ भी देखने का रवैया बहुत समानता का है, वो नहीं है, लेकिन रेप जब होता है उसके पीछे एक पूरा सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक रवैया होता है, एक दृष्टिकोण होता है कि किसको दबाया जा सकता है, जो बहुत आसानी से दब सकता है, जो आसानी से विक्टिम बन सकता है, वो दलित। और दलित स्त्री सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि उसकी कोई सम्मान की उसकी तरफ देखने का रवैया जो है, जो दृष्टिकोण है, वो सम्मान का है। हर महिला के साथ इस तरह का रवैया नहीं है। और जाट महिला या दूसरे किसी भी समुदाय की महिला हो तो उसकी तरफ देखने का रवैया इतना घिनौना नहीं होता है, उसे भोग की वस्तु नहीं माना जाता। यहाँ दलित स्त्री को भोग की वस्तु माना जाता है, एक वस्तु माना जाता है, एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए इसे सिर्फ जेंडर इशू नहीं हम कहेंगे, ये इसमें कास्ट इम्बाइडेड, कास्ट एंड जेंडर इज इम्बाइडेड इन दिस केस। तो हम इसे उसी नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये समाज जो है वो जाति आधारित समाज है, जाति पूरी संरचना जाति आधारित है, और उसमें हर एक कास्ट अलग अलग रहती है, अलग अलग उनके व्यवहार है, अलग अलग उनका रहन सहन है, अलग अलग उनके आर्थिक आधार है। और आज भी आप देखेंगे कि किसी भी गांव में एक दलित टोला है, दलित बस्ती अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये नज़रिया बदल जाता कि उन्हें भी अपने जैसा इंसान माना जाता, और शायद उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता, जो कि इस कदर कि कहीं पर भी किसी भी बच्ची को जाते समय या आते समय घर से निकली और उसको दबोच लिया और दूसरे दिन उसकी लाशें हमें मिली। तो ये मुझे लगता है कि जातिगत आधार इसे है, और उतना ही इसका लिंग भेद का भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सारे केसेस में देखा जाता है कि रेप और मर्डर के अंतर्गत कोई केस दर्ज ना हो जाए, रजिस्टर्ड ना हो जाए, जिससे कि स्टेट का जो है, राज्य का जो है चित्र बहुत ही साफ सुथरा नजर आए। तो ये हमें ये खबर है, हमारे पास ये ऑथेंटिक खबर है कि वहाँ के जो सीएम हैं हरियाणा के, जब तक रेप केस में जब तक सीएम हाँ नहीं कहेंगे वो केस रजिस्टर्ड नहीं होती। ये वहाँ की हकीकत है, और इस हकीकत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब दलित बच्ची का या किसी भी बच्ची का, किसी भी सामान्य जाति की भी किसी लड़की का रेप होता है, तो उसे सबसे पहली कोशिश पुलिस की ये होती है कि इसे दबा दिया जाए, इसे रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाए। रजिस्टर्ड करने के लिए हमें धरने देने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के सामने। जब तक आप धरना नहीं देंगे, कमिश्नर के ऑफिस के सामने जब तक धरना नहीं देंगे, केस रजिस्टर्ड होने के बाद जब पुलिस की तहकीकात शुरू होती है, तो पुलिस कोशिश करती है कि एविडेंसेस कम से कम कलेक्ट करें, जिससे कि केस बहुत मजबूत नहीं हो, कोर्ट में खड़ा नहीं हो। और जब थोड़े बहुत अगर बहुत ही प्रेशराइज करने के बाद अगर लगातार आप उनके पीछे खड़े हैं और उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं पुलिस के ऊपर कि आपने इसका स्टेटमेंट नहीं लिया, आपने ये नहीं किया, आपने ये मेडिकल रिपोर्ट में भी पुलिस बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, और मेडिकल ऑफिसर्स को भी डराकर उनसे गलत रिपोर्ट लिखवा लेती है। ये हमने बहुत केसेस में देखा है, पिछले 26 केसेस में हमने ये होते हुए देखा। तो ये सामान्य रवैया है, पूरे भारत देश के पुलिस का ये सामान्य रवैया है कि अगर लड़की पर या महिला पर बलात्कार होता है तो उन्हें उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। अगर बोल रही है तो हम इसे लिखेंगे नहीं, रिपोर्ट में दर्ज नहीं करेंगे, जो सेक्शन है वो नहीं लगाएंगे। रेप का सेक्शन कभी भी नहीं लगाया जाता है। अगर SC/ST कैटेगरी की अगर महिला है तो SC/ST POA एक्ट नहीं लगता है, लगाया ही नहीं जाता है। तो जो उसमें प्रावधान है सज़ा का वो होगा ही नहीं, ताकि उसको पकड़ने में इतना समय लगाया जाता है। अभी आपने देखा होगा आसाराम बापू को किस तरह की छूट दी जा रही है, वो भी एक रेपिस्ट है और एक माइनर लड़की पर उसने अगर रेप किया है तो आपके कानून को तो धरे के धरे रहेंगे। तो पुलिस का रवैया हर जगह एक जैसा ही है, और अगर
अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर इसको एग्जाजरेट नहीं कर रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस भी कासिस्ट है। पुलिस के महकमे में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को हमने देखा कि वो ये कहते हैं कि लड़की दलित की लड़की है, अरे इसे बिल्कुल रजिस्टर नहीं करना, इनको तो आदत होती है, ये तो इसी के लिए पैदा होती है। ये हमने पुलिस के मुंह से सुना है। तो ये अगर रवैया होगा कि स्त्री को या दलित स्त्री को या दलित बच्ची को वो अगर रेप के लिए ही पैदा हुई मानते हैं तो आप कैसे उनसे न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? डिफरेंस नज़र आता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस टुवर्ड्स जनरल वुमेन एंड टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन सोसाइटी इन जनरल, कि एक में मीडिया अटेंशन इतना ज़्यादा हो सकता है जैसे हमने देखा है कुछ इंसिडेंट्स में, और दूसरी तरफ हरियाणा में हम देख रहे हैं कि इन 45 डेज़ कुछ 22 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन ना तो वो मेन स्ट्रीम में आता है, ना शहरों में कॉलेजेस में या स्कूल में उसकी बात होती है, ना लोगों में उसका कोई इंटरेस्ट है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वायलेंस का मेजर और इंटेंसिटी एक जैसा ही है, कुछ हद तक इन केसेस में हरियाणा जैसे स्टेट्स में इन सम वेज वायलेंस का मेजर काफ़ी ज़्यादा भी है। इट्स लाइक द काइंड ऑफ वायलेंस दैट टेक्स प्लेस। लेकिन वाई इज़ इट दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड? लेट्स से ये एक हमारे लिए भी एक सोचने वाली बात है कि जब निर्भया का केस दिल्ली में हुआ तो निर्भया के केस से पहले 22 केसेस हो चुके थे हरियाणा में, और हरियाणा के इन केसेस को मीडिया ने ही लाइमलाइट में लाया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस पर बात नहीं की या बहुत प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 22 केसेस जो दलित लड़कियों पर है, गैंग रेप और रेप केसेस, जिसमें जींद में ही एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसकी मदर को मार दिया गया था और उस लड़की ने बाद में सुसाइड कर लिया। तो उस केस में थोड़ी बहुत मीडिया ने, क्योंकि सोनिया गांधी जैसे बड़े ओहदे के लोग वहाँ पहुँचे तो इसलिए पॉलिटिकल वो थोड़ा इशू बन गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, मीडिया फिर शांत हो। जितना मीडिया ने निर्भया के केस को साथ दिया और उसके लिए न्याय की गुहार की और न्याय के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया, वैसा दलित हमने नहीं देखा है कि किसी भी दलित बच्ची पर जब रेप हुआ है दिल्ली में ही 8 साल की एक छोटी सी बच्ची पर गैंगरेप हुआ और उसका मर्डर हुआ था बस्ती में, और हम ही लोगों ने उसका केस काफ़ी मीडिया में भी दिया और सब उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से हमने उस केस को वृंदा ग्रोवर के साथ लड़ा है और उसमें हमें न्याय मिला है, उस बच्चे को न्याय मिला है। तो लेकिन उस पर कोई खबर नहीं छपी, कहीं किसी कोने में 4 लाइनें छपी हैं। तो अगर एक माइनर बच्ची पर, दलित और बस्ती में रहने वाली दलित बच्ची पर अगर गैंगरेप होता है, उसका मर्डर होता है, तो मीडिया में कोई खलबली नहीं। ये मीडिया का रवैया का हमें भी नहीं समझ में आता है। लेकिन जब भी उन्होंने साथ दिया है उस केस को, सरकार को एक नया कानून, स्ट्रॉन्ग कानून बनाना पड़ा है और उसकी वजह से एक मतलब जो लचर कानून था, जो रेप के लिए एक बहुत सा लचर सा कानून था, उसको बहुत मजबूत बनाया गया, बहुत सख्त बनाया गया। लेकिन उससे पहले 22 केसेस में किसी ने कोई क्यों नहीं साथ दिया? हम सभी केसेस को लेकर मीडिया के पास गए, ऐसा नहीं, और पुलिस के पास जो रिकॉर्ड होता है वो मीडिया को कभी भी अवेलेबल हो जाता है। और ये रेप केसेस रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए तब मीडिया कहाँ? हमारा भी ये सवाल है कि मीडिया को कुछ ही केसेस में क्यों इंटरेस्ट आता है, और दलित या आदिवासी बच्ची होती है या महिला होती है तो सारा मीडिया चुप रहता है, प्रिंट मीडिया भी चुप है। अभी भी इस केस में बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है कि जितना साथ देना चाहिए था मीडिया ने, जितना साथ हम चाहते थे उतना साथ हमें नहीं मिला। इक्का दुक्का ही लोग हमारे साथ खड़े हैं
जो भी खड़े हैं उनको हमें उनके साथ उनके इस सहयोग से हमें बहुत मजबूती आ रही है। लेकिन अगर पूरा मीडिया हमारे साथ होता और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ आ जाए इस केस को, तो मुझे लगता है कि पुलिस को अपना बयान भी पलटना पड़ेगा और राज्य सरकार को, हरियाणा राज्य सरकार को जो उसका इस समय जो निर्णय ले चुका है कि इस केस को वो रेप और मर्डर में रजिस्टर्ड ही नहीं होने देगा और सारे सबूत नष्ट कर देगा, तो ये बदल सकता है। मीडिया का इतना ज़्यादा रोल इसमें हो सकता है। तो आपको क्या रूरल अर्बन का जो एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि रूरल में ये नहीं होना चाहिए, रूरल में होती है घटना तो किसी को कोई चिंता नहीं, लेकिन अर्बन एरिया में नहीं हो, शहर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लड़कियाँ जो पढ़ने जाती हैं या नौकरी कर रही हैं या किसी भी अच्छे प्रोफेशन में हैं, तो उनको सुरक्षा चाहिए, उनको मुहैया की जा सकती है और सरकार का वो फर्ज माना जाता है। लेकिन वही बात अगर गांव में चले जाए यही, तो गांव की लड़कियों की कोई किसी तरह की सुरक्षा का इंतजाम नहीं। हम देखेंगे लड़कियां 5-5 किलोमीटर चलकर स्कूल में पहुंचती है और रास्ता सुनसान होता है। अगर बस है तो बस में भी उसके कोई खास तरह का इंतजाम नहीं है कि लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए अलग सीट्स। शहरों में शहर का जो नागरिक है वो बहुत ज़्यादा सचेत है, उसे अपने अधिकारों की जानकारी है कि मुझे, या लड़कियों के बारे में अगर बात करें, यंग लड़कियों की, तो उन्हें पता है कि मेरे अधिकार क्या है, मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार अगर दे नहीं सकती तो इसको क्वेश्चन करना हमारा कर्तव्य बनता है और वो इसलिए फिर मीडिया भी साथ देती है, सारा नागरिक समुदाय। गांव में ये स्थिति है, एक तो गांव में शिक्षा का दर बहुत कम है जैसे मैंने पहले कहा, और डिवीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब अमीर और गरीबी का जो है वो एकदम सीधे सीधे दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। लेकिन ये केस तो शहर में भी है, जैसे कि हाँ शहरों में भी है, लेकिन शहरों में जो क्या कहेंगे उसे, जो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा संख्या में, जो बात मैंने अभी पहले कही कि 8 साल की बच्ची जो माइनर बच्ची थी, उसके ऊपर जब रेप और मर्डर होता है तो वो बस्ती की थी लड़की। अब वैसा ही अगर ये इंसिडेंस, वैसी ही घटना अगर शहर में होती, बस्ती की नहीं होती वो बच्ची और मिडिल क्लास की या अपर मिडिल क्लास की होती, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विरोध का स्वर उठ खड़ा होता। लेकिन उस बच्चे के लिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक जो तबका है जो हमारे साथ ही रहता है लेकिन हमारे से दूर है, उसमें और हमें थोड़ा सा दूरी है, वो हम पर डिपेंडेंट, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के ऊपर वो डिपेंडेंट है, जो कि मजदूर वर्ग। और ये सब बस्तियों में रहने वाला जो वर्ग है वो मजदूर वर्ग, वो किसी के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर, ये निर्भरता बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की सम्मान को गिराती है, किसी को उठाती है और किसी को गिराती है। और यही यहाँ देखा गया कि, और निर्भया के केस में जो हुआ है वो यहाँ की जो यंग लड़कियाँ हैं जो कॉलेज में जा रही हैं या प्रोफेशन में अच्छे प्रोफेशंस में काम कर रही है या नौकरियों में है, उन्हें लगा कि मैं भी कल इस तरह की इस हादसे, ऐसे ही हादसा मेरा भी यौन शोषण ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ये घट सकता है। सबने उसके साथ अपने को जोड़ना शुरू कर दिया कि कल मेरी भी बारी है, कल मेरी इसकी भी बारी हो सकती है, क्योंकि ये शहर सुरक्षित नहीं है। और उससे जो एक भय, अंदर एक भय निर्माण हुआ कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। और ये बहुत समय से जो हो रहा था, दिल्ली शहर में ऐसी बहुत सारी केसेस हो गई थी, रेप केसेस बहुत, और गैंग रेप केसेस भी हुई थी, मर्डर भी हुए थे, लेकिन इतना आक्रोश कभी भी नहीं हुआ जितना निर्भया के समय, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हम अंदर वो भर गया था कि इतना दुख और आक्रोश भर गया था कि कहीं ना कहीं उसका विस्फोट होना ज़रूरी था। और तभी ये सरकारें जो है, जो सरकार, राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी होती है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, उनको उस जिम्मेदारी का हमें एहसास भी दिलाना होता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षा मुहैया करें, हम अपने घर में, हमारे घर के अंदर और घर के बाहर भी हम सुरक्षित रहें, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं तो वो सरकार चली जाए। हमारी तो ये सीधी सी मांग थी कि वो सरकार चली जाए। अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकती है, जो कि इस देश की आधी कायनात है, आधी दुनिया जिसे कहा जाता है, उस आधी दुनिया को अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते और ये कह सकते हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है ऐसे सरकारों की, ऐसे राज्य की क्या ज़रूरत है? हम कहेंगे कल हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी राज्य हमें सुरक्षा नहीं दे सकता है तो हम अपना राज्य अलग बना सकते हैं, जो कि केवल स्त्रियों का राज्य हो सकता है, जहाँ हम सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षा हमारा अधिकार है और वो सबको देना पड़ेगा। अगर पितृसत्ता हमसे वो अधिकार छीन लेती है तो हमें वो छीनने से मना करना होगा। और बराबरी का अगर अधिकार देने से कोई रोकता है या कोई हमारा अधिकार छीन लेता है तो हमें उसके लिए पर्यायी एक योजना बनानी पड़ेगी या उसके लिए पर्याय ढूंढना पड़ेगा। वहाँ तक हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये राज्य या ये देश हमें सुरक्षा नहीं देता है, हमारा सम्मान छीन लेता है या सम्मान नहीं देता है या हमारे अधिकारों को मटियामेट कर देता है, तो हमें दूसरे देश की, जो कि स्त्री देश होगा, उसकी भी डिमांड करनी पड़ेगी। और वो समय बहुत दूर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमें बहुत चिंता है कि अगली पीढ़ी जो आने वाली है उसकी क्या सुरक्षा का क्या इंतज़ाम हमारे यहाँ, या हमने उसके ऊपर कितना काम किया है। क्योंकि हमारी तो पीढ़ी बहुत पहले की पीढ़ी है और हमने भी उन सारे खतरों से हम गुजर चुकी है, लेकिन उस समय कोई हमारे साथ नहीं होता था, मीडिया कभी बात नहीं करती थी, कोई लिखता नहीं था, डर लगता था, कहने से डर लगता था कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो गया या अत्याचार हुआ तो उसे चुप कराया जाता था, क्योंकि वो इज्जत का मामला माना जाता है। अब अधिकार है, एक स्त्री के शरीर को कोई भी इस तरह से उसकी अवहेलना नहीं कर सकता या उसके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। तो ये आज हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो इसलिए हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, उसकी हमें बहुत चिंता है कि क्या उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम अभी हो चुका है या हम कर पाएंगे। तो ये हमारी भी चिंता है। तो आप मीन व्हाट डू यू फाइंड ऑफ देयर एटीट्यूड, लाइक उनको यूजुअली व्हाट इज़ देयर डिमांड फ्रॉम सच थिंग्स? सबसे पहले उनकी जहाँ भी हम गए हैं, हरियाणा में पिछले नवंबर में ही हमने 9 दिन की रैली की थी ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच में। ये जब केसेस हो चुकी थी और हमारी रैली के दौरान और 3 केसेस हमारे सामने आए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मतलब कैसी चिंताजनक स्थिति है कि रैली चल रही है और उसी दौरान 3 और रेप केसेस, गैंग रेप केसेस हुए, और एक गैंग रेप केस में हमने पुलिस थाने में धरना दिया, तब जाकर वो रजिस्टर्ड हुआ। तो ये हमारा अनुभव है। और उनके परिवार के लोगों से जब भी हम मिले और उनको हमने सांत्वना दी और उनका हमें सपोर्ट मिला, साथ मिला, और सब न्याय के लिए डट कर मुकाबला कर रहे हैं। किसी ने भी अपनी बच्ची पर हुए अत्याचार को भुलाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि बहुत ज़्यादा आक्रोश और बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर देखा हमने। और महिलाएं, पुरुष, बच्चे, भाई, पिता, दादा, नाना, नानी सब हमारे साथ खड़े हुए। और करनाल में वहाँ की एसडीएम ने हमारा मेमोरेंडम लेने से इनकार कर दिया था, करनाल जिले की। तो 400 लोगों ने उसका घेराव किया, उसके ऑफिस का, और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लोग हमारे साथ बैठे रहे और हम भी उनके साथ बैठे रहे कि कम से कम एक मेमोरेंडम तो हमारे से एक्सेप्ट कर ले। मेमोरेंडम लेने का क्या, ना लेने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम कोई परवाह नहीं करते, कि आपकी परवाह नहीं करते हैं, आपका मेमोरेंडम क्यों ले।
अगर हमारे जैसे एक्टिविस्ट की बात अगर नहीं मानी जाती है हरियाणा जैसे शहर में, स्टेट में, तो मुझे लगता है कि जो भी बहुत ही सामान्य मजदूर है या बहुत गरीब मजलूम व्यक्ति है, उसकी बात कैसे कोई आराम से टाल सकता है और उसे घर भेज देते हैं कि जाइए जाइए, आपकी लड़की का बलात्कार हुआ है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये तो होता ही रहता है, और तुम्हारी लड़कियों के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। ये पुलिस के शब्द हमने अपने कानों से सुने। तो इससे पता चलता है कि दलित के प्रति जो भेदभाव का रवैया है, जो निम्न दृष्टि से देखने का की दृष्टि है उनकी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये और ज़्यादा इसमें हमें बढ़ोतरी लग रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तरफ राजनीतिक जो समीकरण हैं वो भी बदल रहे हैं, जिसमें दलितों के भागीदारी बहुत कम है, दलितों के नुमाइंदे कम हैं, जो है वो बोलते नहीं हैं, जो पार्लियामेंट में भी बैठकर कोई बात नहीं करेंगे, या किसी अत्याचार के बाद कोई बोलता नहीं है। तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि दलित का बलात्कार हुआ है तो इसमें ऐसी क्या हाय तौबा होगी। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसे बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से इसे हमें सुलझाना है और लोगों की मानसिकता को भी बदलने की कोशिश करनी है। तो मेंबर, आपको क्या लगता है कि what kind of strategies can be adopted at different levels of the society? देखिए, हम सबसे पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा हमारा नज़र जो जाती है, इस दलित स्त्री के जो अधिकार जो का वायलेशन जो हो रहा है वो रुके। उसको वो आए दिन दलित महिला जो पीड़ित हो रही है उसे हम मॉनिटर कर रहे हैं लगातार 15 सालों से, और वो ग्राफ कम नहीं हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसलिए दलित महिलाओं की सुरक्षा का मामला लेकर, उसके अधिकारों को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। तो सबसे पहली नज़र हमारी वहीं जाती है। और दूसरा ये है कि दलित को सम्मान जो नहीं मिल रहा है, पूरी दलित समुदाय की बात हम कर रहे हैं, और उनके ऊपर आए दिन जो अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हर स्टेट में बढ़ी है, कम नहीं हुई। और ये एक और दूसरा मुद्दा है, और उसके आर्थिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद और प्राइवेटाइजेशन के बाद उनके जो रोज़गार थे वो बहुत कम हो गए, और वो स्किलफुल लेबर नहीं है, लेबर क्लास नहीं है, वो परंपरागत कामों में जुटा हुआ। तो इसलिए और उनके वो और ज़्यादा गरीबी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनमें गरीबी और बढ़ी है, और उससे उनका पलायन भी हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जहाँ जिस गांव में कुछ भी नहीं है, कोई आर्थिक आधार नहीं है, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, और शहरों में आकर वो बस्तियों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, जहाँ पर फिर जो शहरों की या राज्य का ध्यान वहाँ पर नहीं है। तो उनके बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको जो सामान्य तौर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उनके पास तक नहीं है। आप दिल्ली की बस्तियों में जाकर देखें तो आपको लगेगा कि यही दिल्ली एक वो दिल्ली है जो लुटियन गार्डन्स की है, और एक है ये दिल्ली जिसकी कोई अलग सी सूरत है, जिसकी सूरत ही नहीं है, जहाँ अंदर घुसने के लिए दो फीट की गली है और दोनों तरफ घर है, और ऐसी जगह पर लोग रह रहे हैं कि जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है। तो ये भी दिल्ली की एक तस्वीर हमारे सामने है। तो ये जो फ़र्क है, ये जो जुदा जुदा लोगों में के लिए साथ जुदा जुदा जो व्यवहार है सरकार का, ये क्यों, ये एक हमारा चिंता का विषय है। और इसके लिए हम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, हम इंटरनेशनल स्तर पर भी इसके लिए बात कर रहे हैं, और ख़ास करके महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए या रुक जाए, इसलिए जो भी कानून है
वो और मजबूत हो, इसलिए हमने कई बार उसमें सुधार भी मांगे। और एक सुधार के लिए जो एक ड्राफ्ट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो शायद इस सत्र में पास भी होगा, जिससे कि जो SC/ST PO एक्ट जो है वो और मजबूत होगा। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि दलितों की स्थिति जो आज भी ठीक नहीं है, बहुत आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से नहीं, तो वो कुछ मजबूत हो जाए और उन्हें भी जीने का अच्छा अधिकार मिले। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, तो लाइक अबाउट what do you think is the status of Dalit women students in universities, especially जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अभी reservation, thanks to reservation, so many women students from different communities are coming. So what kind of obstacles do you think they are facing? पहले से बेहतर है। पहले तो स्कॉलरशिप्स नहीं थी हायर एजुकेशन में, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो अब तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स हो गई हैं। राजीव गांधी फेलोशिप है, मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, या नेट वाली भी JRF है। तो उससे एक थोड़ी सी आर्थिक आधार हो गया है, तो लड़कियों का पढ़ने का दर बढ़ गया है, परसेंटेज बढ़ गया है, और उनके अगर वो अच्छी पढ़ाई करेगी तो अच्छी नौकरी भी पाएगी, तो उसमें एक नया एक सपना भी देख रही है। तो इस तरफ हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में या 15 सालों में कि हायर एजुकेशन की तरफ लड़कियों का आना बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले बहुत कम था। और क्योंकि एक उनको आर्थिक मजबूती मिल रही है, एक आर्थिक आधार मिल रहा है स्कॉलरशिप के ज़रिए, तो वो टिकी रहती है, बीच में छोड़ती नहीं है। जब तक कि डिग्री नहीं मिलती है वो ज़रूर वहाँ पर टिकी रहती है। एक बात है कि आपने एक सवाल किया कि उनकी तरफ देखने का मतलब उन्हें भी क्या भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, या उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, यही आप कैसे। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी बाकी है। अभी भी कहीं कहीं ये कैंपसेस में दिखाई देता है कि टीचर्स का, चाहे वो मेल या फीमेल टीचर्स हो, उनका रवैया दलित बच्चों की तरफ, दलित स्टूडेंट की तरफ भेदभाव है, बहुत सपोर्टिव नहीं। बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आती हैं, और ख़ास करके मेडिकल में ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वो किस तरह से IITs में है, JNU DU में भी ये कुछ केसेस हमारे सामने आई हैं कि उनकी तरफ जैसे कि अमूमन जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड बैकग्राउंड से आती हैं, तो उनमें इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश का ही बोलबाला है, तो इंग्लिश अच्छी ना होने से उनको थोड़ी तकलीफ़ें होती हैं, और टीचर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट नहीं मिलता है। ख़ास करके जब थीसिस लिखती हैं या कोई एग्ज़ाम देती हैं, तो उसमें एक सरकास्टिक एटीट्यूड दिखाई देता है, और उन्हें ये भी कहते हुए सुना है, हम बहुत सारे स्टूडेंट आकर बताते हैं, अपना दुख हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमें कहा जाता है कि ये एरिया आपका नहीं है, आप यहाँ कैसे आ गए, आप गलती से आ गए हैं, वापस जा सकते हैं। तो इनकरेजमेंट नहीं, जो कि और स्टूडेंट जो हैं जो जनरल कैटेगरी के, उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनको इनकरेज किया जाता है, उनके साथ बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन हो जाता है, लेकिन इन बच्चों के साथ नहीं। आपने सुना होगा कि JNU में एक सेल बना है जिसमें दलित और आदिवासी या OBC बच्चों की केसेस ली जाती हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टीचर्स की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसे केसेस को ली जाती है। तो एक सेल बनाना पड़ा। वो क्यों बनाना पड़ा? इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन है, उस लेवल पर भी है, और ये डिस्क्रिमिनेशन की केसेस को जब तक आप
सभी को मालूम नहीं होगा, तो ये एक सामान्य सा लोगों में एक जानकारी भी उनके पास नहीं रहेगी, और फिर इसके प्रति कोई बहुत ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं दिया जाएगा या लिखा नहीं जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मेडिकल में सुसाइड किया है, IITs में बहुत सुसाइड्स हुए हैं, वो इसी कारण से। तो दलित वुमेन स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी कैसे और बढ़ता है, या दलित तो उनका आपस में भी जो उनके साथ जो उनके सहपाठी है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, और उनमें काफ़ी भेद है। उनके साथ बहुत फ्रेंडशिप नहीं होती, वो गैप कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और कभी कभी उनके साथ ऐसे घटनाएं हुई हैं कि सीधे सीधे उनको जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, कास्ट बेस्ड एटीट्यूड दिखाई देता है, या रूममेट भी आपस में जाति के कारण एक दूसरे से बातचीत नहीं करती है। यहाँ पर कई इंसिडेंसेस देखे गए। थैंक यू।